Yes, good morning everyone. So today we are going to start with the alternating current chapter. This is chapter number 7 of your textbook. Yes, I hope I am audible to all. Yes, this is 7th chapter of your textbook and the chapter deals with alternating current. Till now we have only studied direct current. In current electricity chapter, whatever sources, cells, batteries we have taken, we have only discussed about the direct current. So this is a variable current, right? So alternating, basics of alternating current you have also studied in 10th standard, but now we are going to study everything including the phase, including the EMF, including the current, and everything in this chapter we are going to study, right? So what is alternating current? Alternating current is any current whose magnitude and direction changes with time. अगर current का direction as well as magnitude दोनों चीजें change हो रही हैं time के साथ, so we name that as alternating current. So this is how your alternating current looks like. Positive phase, then negative phase, then positive phase, negative phase, and so on. Positive, negative, and so on. So if we discuss the diagram, then that is how we can write, we can draw the black line here, the black ink or the black wave tells us about the EMF of the source. That is how the EMF changes. Right? So on y-axis what has been taken? EMF or current. So first I am discussing about the EMF of the source. So EMF is 0, it is increasing, becoming maximum, then decreasing, becoming 0. 0 when time is from 0 to t by 2. When time was t by 4, this is called one complete cycle. 0, 0 to t, this is one complete cycle 0 to t. So ये पूरा cycle 0 to t है. Now we observe कि जब phase धीरे धीरे EMF increase होना शुरू हुआ 0, 1, 2, 3 some value, maximum value when time was t by 4, right? Then it started decreasing and at some time t by 2, half of the wave in a time interval of t by 2, it has become 0. What was the phase? Here the phase was 0, here the phase was pi by 2, you have studied in waves chapter, pi by 2 means sin 90, that is maximum, and then it became 0 when time was t by 2, right? Again, it started increasing in negative direction, increase here, and at a time period of 3t by 4, right? It has rose to a negative value of minus E naught प्लस पाई बाय 2 था तो वो कितना हुआ था, पीक वैल्यू पे पहुंचा था. पीक वैल्यू को हमने बोला लेट अस से इट इज E नॉट. अभी फिर ये 0 हुआ, 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होते 3t by 2 पे ये कितना हो गया, दिस इज माइनस E नॉट. अगेन फ्रॉम नेगेटिव इट हैज स्टार्टेड increasing and again it became 0 when the phase was 2 pi. This complete cycle took place in t time. So ये complete cycle का time कितना है, कैपिटल T. हाफ साइकिल का टाइम कितना है, t by 4. 1/4 साइकिल का टाइम कितना है, t by 4. हमने ये देखा कि t by 4 पे EMF मैक्सिमम था और 0 पे EMF क्या था, 0. when the phi was t by 2 पे EMF कितना था, 0 और फेज कितना था, पाई. अगेन जब हम इस साइड जा रहे हैं तो -3 पाई बाय 2 पे EMF फिर से क्या हो गया, माइनस E नॉट, और यहाँ पे टाइम कितना था, 3t by 4. अगेन जब हम 2 पाई फेज पे पहुंचे तो इस फेज में टाइम पूरा कंप्लीट हो गया t और EMF फिर से कितना हो गया, 0. सो EMF कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब जो आप सोर्स का वोल्टेज दे रहे हो वो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर रहा है, फिर डिक्रीज होकर 0 हो रहा है, फिर नेगेटिव वैल्यू तक जा रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज एंड सो ऑन. दैट इज हाउ द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग EMF विल
वैरी इन ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग है, जो सोर्स का ईएमएफ हम क्या दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग दे रहे हैं, तो करंट भी कैसा होगा, करंट विल ऑल्सो बी ऑल्टरनेटिंग, राइट। सो लेट अस डिस्कस करंट इन द सेम डायग्राम, राइट। सो करंट को आई हैव शोन विद अ ब्लू कलर वेव, right, because the voltage was EMF, because the voltage was alternating, so current will also be alternating. So now you observe कि जब EMF 0 था तो उस वक्त there was no current. The moment EMF has started here, after time t/4 करंट ने राइज होना शुरू हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने EMF दिया और इमीडिएटली करंट शुरू हुआ, करंट थोड़ा सा पीछे चल रहा है। से फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस डायग्राम, जैसे ही EMF दिया करंट डेवलप होना शुरू हुआ, बिकॉज करंट विल बी ड्यू टू द सोर्स EMF। तो आफ्टर एट टाइम t/2 करंट 0 था और EMF कितना हो गया था, तब तक मैक्सिमम हो चुका था। मैक्सिमम EMF पे करंट डेवलप होना शुरू किया एंड करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग 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 टू दिस पोजीशन। लेकिन जब करंट पूरा इंक्रीज हुआ तो हमने क्या देखा, EMF क्या हो गया, डिक्रीज होते 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 यहां पे EMF कितना हो गया, 0। करंट क्या है, मैक्सिमम। अब क्योंकि करंट इज ड्यू टू द EMF, करंट EMF के पीछे पीछे चलने वाला है, सो व्हाट विल हैपन, करंट विल आल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, बट EMF विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी जब करंट होते 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 0 आया, तब तक EMF कितना हो चुका था, EMF तब तक -E0 हो चुका था, मतलब मैक्सिमम पीक वैल्यू बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो बाय द टाइम इसको फॉलो करते 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 करंट ने इंक्रीज होना शुरू किया। बाय द टाइम करंट यहां पे इंक्रीज होके मैक्सिमम हुआ, तब तक EMF कितना हो चुका था, EMF was 0। सो व्हाट वी कंक्लूड कि जैसे जैसे हम करंट, जैसे जैसे हम EMF को चेंज करें, करंट इज ऑल्सो चेंजिंग, लेकिन वो EMF के पीछे पीछे चल रहा है एंड देयर इज सम कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ फेज। ये जो कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ फेज है, ये हम अलग अलग सर्किट्स के लिए इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस। हो सकता है वो 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, लेकिन करंट EMF के साथ साथ चेंज हो रहा है। इसी को, इस फेज को अगर हम सेपरेट डायग्राम में बनाएं तो उसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम, राइट। अभी तक आपने वेव डायग्राम पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर में, या आपने सर्किट डायग्राम पढ़ा है, सर्किट डायग्राम एंड वेव डायग्राम। दिस इज द वेव डायग्राम। वेव डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि 1 सेकंड के बाद EMF इतना है, 2 सेकंड के बाद इतना है, 3 सेकंड के बाद इतना है, 4 सेकंड के बाद इतना है। अगर मैं यहां पे पूछूं तुमसे कि यहां पे करंट ऐसा है और अगले 1 सेकंड में EMF डिक्रीज हो रहा है, तो अगले 1 सेकंड में करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगले 1 सेकंड में EMF यहां पहुंच जाएगा, लेकिन करंट कहां पहुंच चुका है, करंट यहां पहुंच चुका है। करंट इतना है, EMF इतना है। अगर हम इसी को अलग से, सिर्फ हम पूरा वेव डायग्राम ना बना के फेज ही शो करें, सो द डायग्राम कैन बी शोन लाइक दिस, राइट। सो दिस टेल्स अस द टाइम। किसी भी फेजर डायग्राम से हमें टाइम का पता चलता है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ EMF और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का पता चलता है, प्लस हमें यह पता चलता है कि करंट पीछे चल रहा है या करंट आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे चल रही है, वोल्टेज आगे चल रही है, विच इज लैगिंग एंड विच इज लीडिंग। लैगिंग और लीडिंग का भी हमें पता फेज से चलता है, राइट। जैसे इस डायग्राम के लिए करंट इज लैगिंग और करंट इज लीडिंग। ऑब्वियसली इफ यू लुक एट द डायग्राम यू विल फाइंड दैट व्हेन EMF इज मैक्सिमम करंट इज 0। जैसे जैसे करंट ने राइज होना शुरू किया, EMF ने डिक्रीज होना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल सपोज करंट EMF कितना था, 100। व्हेन EMF वाज 100 करंट वाज 0। अब ये जो 0 करंट था, इसने EMF के पीछे पीछे चलने की वजह से ये राइज होना शुरू हुआ और कितना हो गया, 100। जब ये 100 हुआ तो बाय दैट टाइम इट बिकेम 100, EMF कितना हो चुका था, 0। अब इस 0 EMF को रीच करने के लिए करंट भी 0 से डिक्रीज, 100 से डिक्रीज होते 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 कहां तक पहुंचेगा, 0 तक पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही करंट 0 होगा, EMF कहां पहुंच गया, -100 पे पहुंच गया, नीचे पहुंच गया। देखो जब करंट 0 हुआ तो EMF कहां पहुंच चुका है, -E0 पे पहुंच चुका है। तो करंट EMF को फॉलो करने के लिए इट चेंज टू 0, बट बाय दैट टाइम EMF कितना हो गया, -100। अब इस 0 को -100 बनने में जितना टाइम लगेगा, 0 से डिक्रीज होते होते वो -100 गया, लेकिन -100 होते होते EMF कितना जा चुका था, फिर से 0 हो गया था। फिर से ये 0 बनने के लिए बाय द टाइम इट विल कम फ्रॉम -100 to 0, तो क्या देखा, EMF फिर से 100 हो गया।
EMF फिर से 100 हो गया तो करंट वाज 0. सो दैट इज हाउ देयर इज अ कंटिन्यूअस गैप, देयर इज अ कंटिन्यूअस फेज चेंज बिटवीन द EMF एंड द करंट. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. जैसे जैसे करंट राइज कर रहा है वैसे वैसे जैसे जैसे EMF राइज कर रहा है वैसे वैसे करंट चेंज नहीं होता. और अगर हम इसको फेज की टर्म्स में देखें तो हम क्या देखेंगे, सपोज एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये E0 था, दिस इज E0. वी हैव स्टडीड इन 11th चैप्टर इन वेव्स एंड ऑसिलेशंस हम कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन लेते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन इज लाइक से EMF ऐसे इंक्रीज हो रहा है मैक्सिमम, सॉरी सो इन SHM व्हाट वी हैव स्टडी, ये जो होती है ये पीक वैल्यू होती है. दिस इज द पीक वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज द पीक वैल्यू इन negative direction. Suppose the particle is rotating in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction means positive or negative? Anti-clockwise means positive. Positive displacement will take. So ये peak value हो जाएगी. किसी particular instant of time पे ये हमारी peak value थी EMF की E0. अगर हम यहाँ पे instantaneous value हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक normal draw करेंगे और नॉर्मल ड्रॉ करने से ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू क्या होगी, आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू. किसी भी फेज पे किसी भी वेक्टर पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इट विल गिव द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF. तो यहाँ पे ये क्या थी, पीक वैल्यू थी, और यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू. जब ये E0 था और ये E था, इस टाइम पे सपोज करंट यहाँ पे था I0, तो ये करंट की क्या वैल्यू आ गई, I0. अगर हम यहां पे भी इसका प्रोजेक्शन फाइंड करें, सो दिस वैल्यू इज I. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, व्हाट यू कैन से, सपोज वी आर टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज हाउ इट चेंजेस. सो अगर E0 यहां पे तो E का ये वैल्यू, लेकिन उस वक्त I इज लेस देन E. आफ्टर सम टाइम सपोज E यहां पहुंच गया, आफ्टर सम टाइम दिस इज E0. यहां पे हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया तो ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू आया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF. लेकिन जब ये यहां पे था तो करंट वाज हियर, राइट. सो इफ वी ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ करंट, दिस वैल्यू विल बी the instantaneous value of current. So now EMF is less but current is more. By the time suppose यहाँ पे ये E0 था, यहाँ पे E0 था तो ये होगा EMF. लेकिन what will be the direction of current? Say this was current I0 and then the projection will tell us the value of I. सो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे E चेंज हो रहा है वैसे वैसे I भी चेंज हो रहा है. देयर कुड बी अ टाइम वेयर I इज 0 बट EMF इज मैक्सिमम. अगर हमने कहा कि I यहाँ पे है 0 तो हम क्या पाएंगे कि E0 यहाँ पे होगा. सो इसको हम सर्कमफ्रेंस वाइज ना बना के अलग से बना ले. सो दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम जो फेज की टर्म्स में बने, जैसे हमने ये क्या किया, ये E0 बना दिया सेपरेटली, ये सर्कमफ्रेंस वी आर नॉट शोइंग. सो यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या था, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ E0 हो गया, ये पीक वैल्यू है, E0 इज द पीक वैल्यू, और प्रोजेक्शन से हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता चली. उस वक्त जो इनिशियल फेज था वो था ओमेगा टी. EMF का इनिशियल फेज कितना था, ओमेगा टी. फॉर एनी इंस्टेंट, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन दैट करंट इज लैगिंग बाय 90 डिग्री. तो अब हमने क्या किया, करंट को ऐसे ड्रॉ कर दिया, कितने डिफरेंस पे, 90 पे. अगर हम यहाँ पे करंट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, राइट. सो व्हाट वी कैन से, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, ये वाला एंगल कितना है, दिस एंगल विल बी ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. सो वी से दैट करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय पाई बाय 2 और करंट इज लीडिंग. In some other diagram it can be behind, it can be exactly on that, or it can be leading depending on what phasor diagram has been shown. So phasor diagram tells us the direction, phasor diagram tells us current is leading or current is lagging or current is in the same phase. अगर ये वाला blue वाला जो ग्राफ है exactly इसके ऊपर होता तो दोनों का E0 I0 maximum, दोनों का E0 I0 0. So accordingly we decide, the phasor diagrams helps us to decide कि करंट कितना है, EMF कितना है, करंट पीछे चल रहा है या EMF पीछे चल रहा है, and what is the angle between them. So in this chapter we are going to study different phases
or different diagrams, phasor diagrams and different circuits. A circuit may have only resistance, a circuit may have a coil or inductor, a circuit may have a capacitor, it may store charge or it may it may have a coil क्या करेगा, immediately current को start नहीं होने देगा, it will have a back EMF. Because of back EMF the current may delay, the way it is delaying in this diagram. EMF rise हो गया लेकिन current थोड़ी देर बाद आ रहा है, right? और it may have same phase, ऐसा भी हो सकता है कि current और EMF दोनों same phase में हो, there is no phase difference between them. Including that we will also study special circuits and we will study about transformer and AC generator in the chapter. Right? So lot of terms will be used from waves and oscillations chapter.